27ویں آئینی ترمیم کا بل جمعے کو سینٹ میں پیش ہونے کا امکان، دونوں ایوانوں میں بحث کے بعد 10 نومبر کو ووٹنگ کرائی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سینٹ کا اجلاس چھٹی کے روز بھی جاری رہے گا۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر جمعے اور ہفتے کے روز بحث کرائی جائے گی۔ 27ویں ترمیم سے متعلق مشاورت کے لیے پی پی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جمعرات کو ہوگا۔ حکومت کی 27ویں ترمیم لانے کی تیاری۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا قانون سازی کسی جماعت یا فرد کے لیے نہیں، ملک میں بہتر نظام کے لیے کی جا رہی ہے۔ 27ویں ترمیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے 2/3 اکثریت سے لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا عدالتی عمل کو مزید تقویت دینے کے لیے ترامیم زیر غور ہیں۔ آرٹیکل 24C کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں جس کے تحت بات چیت چل رہی ہے۔ اس پر کوئی حتمی بات کرنا قبل از وقت ہے، حساس معاملہ ہے، قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے 27ویں ترمیم پر مشاورت شروع کر دی، جو بھی اختیار ہوگا وہ عدلیہ اور چیف جسٹس صاحبان کے پاس ہی ہوگا۔ آئینی بینچ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن مزید بہتری کے لیے آئینی عدالتیں بننی چاہیے۔ ترمیم پر حکومت کی پوری کوشش ہوگی، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملائیں۔ 98ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو حکومت کو نقصان ہوگا۔ 27ویں ترمیم جس انداز سے آ رہی ہے اس سے ملک میں دراڑ پیدا ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اس وقت ہر محب وطن پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ سب ایک پیج پر ہوں۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے حکومت آئینی ترمیم پر مسلسل انکار کرتی رہی، اب سب کچھ سامنے آ گیا۔ بلاول بھٹو کے ٹویٹ کے بعد واضح نظر آ رہا ہے حکومت پھر عوام سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ترمیم کے ذریعے صدارتی اختیارات کو دوبارہ چھیڑا جا رہا ہے۔ NFC ایوارڈ کے طریقہ کار میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ صوبوں کے اختیارات محدود کیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آئینی عدالت کے قیام کی تیاری کی جا رہی ہے۔ MQM پاکستان 27ویں ترمیم میں بلدیاتی ترمیمی بل شامل کرانے کے لیے کوشاں۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پہلا بنیادی نقطہ 140A پر عمل درآمد اور بلدیاتی حکومتوں کو آئینی تحفظ دلانا ہے۔ وزیر اعظم سے آخری ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوئی۔ ملاقات کے وقت چیزیں حتمی طور پر طے نہیں ہوئی تھی۔ مسودہ کیا ہے، ترمیم میں کیا کچھ شامل ہے، ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب مسودہ سامنے آئے گا تو پارٹی میں مشاورت کریں گے۔ متحدہ کی اپنے ارکان قومی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ 26ویں ترمیم قبول تھی، نہ 27ویں ترمیم قبول کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آئین سے کھلواڑ ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آئین متفقہ دستاویز ہے، اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ترامیم لائی جا رہی ہیں، اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مسترد کر دے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ میں پہلا ون ڈے جاری۔ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کی پہلی بیٹنگ، اوپنرز نے 98 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ 2 سال بعد ون ڈے میں واپسی کرنے والے ڈی کاک کی نصف سینچری۔ سائم ایوب نے اوپننگ پارٹنرشپ توڑی۔ تمام میچ دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست۔ لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کو کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی کا حکم دے دیا۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت۔ شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارکیٹوں اور ریسٹورانٹس کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے پابندی لگانے کا مقصد اسموگ کا تدارک ہے، ماحول میں آلودگی بڑھنے سے اسموگ بڑھ رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا میں موسم کے تیور بدل گئے۔ سوات اور مانسہرہ کے بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ مینگورہ میں کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا۔ بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ لوور دیر کے ندی نالوں میں طغیانی۔ تالاش میں وین پر درخت گر گیا، ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ بنیر میں بھی بادل جم کر برسے۔ مالاکنڈ کی سڑکیں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گلگت کے پہاڑوں پر بھی برف باری۔
सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश। सदर आसिफ जरदारी की दोहा में ताजिक और इराकी हम मनसबों से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। आसिफ जरदारी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे को ताल्लुकात में गहराई का मजहर करार दिया। आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कतर में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दोहा डिक्लेरेशन की हिमायत करता है। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मसावात और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। आईनी हुदूद का एहतराम और हाई कोर्ट्स की खुद मुख्तारी तस्लीम करते हैं। मुकदमात की समाअत पॉलिसी के मुताबिक मुकर्रर की जा रही है। जल्द समाअत की दरखास्तें मेरिट पर देखी जा रही हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सबकदोश और नौ मुंतखब काबीना से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवामी सहूलत मराकज़ सुप्रीम कोर्ट और तमाम रजिस्ट्रीज में कायम कर दिए गए। सहूलत मराकज़ से वकला और साइलिन को शिकायत के हल की सहूलत दे रहे हैं। कलअदम पीएलपी के अहदेदारों का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले साबिक टिकट होल्डर्स ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत की। बैरिस्टर उस्मान खजर ने कहा, रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। रियासत को खतरा होगा तो हमारी सियासत का कोई फायदा नहीं। कराची के इलाके राम स्वामी में डंपर की टक्कर से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। मुख्तलिफ अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गार्ड के हमरा जाए हादसा पहुंचे तो मुख्तलिफ अफराद ने घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। गार्ड की हवाई फायरिंग, पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। डंपर ड्राइवर लियाकत महसूद और 20 से 25 अफराद नामजद। लियाकत महसूद ने जमानत कबलस गिरफ्तारी करा ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांठी में तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 20 साल का काशान जाम हक, 19 साल का अकमल जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर का कहना है, हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के आज़म पर कायम है। वजीर आजम का कहना है, कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़े पैगाम है, फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला बाइस फख्र और हमारी डिजिटल सलाहियतों का एतराफ है। हमेशा कहता था IMF हो या ना हो, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का गूगल क्रोमबुक की असेंबली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने गजा में खुरेजी रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में अब मुआहदा हुआ, इसराइल को इस पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, माई गिरी और एक्वा कल्चर के शोबे में जदीद इस्लाहात ला रहे हैं। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। सी फूड बरामदात को 4 साल में $2 अरब तक ले जाना है। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी।
सुप्रीम कोर्ट के कैफेटेरिया में एसी प्लांट में धमाका, 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस चुका। आईजी इस्लामाबाद कहते 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट से गैस लीकेज की शिकायत थी। धमाका एसी प्लांट में हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा माहौलियाती तब्दीली, जंगलात और जंगली हयात का इजलास। सुहेल आफरीदी का टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, जंगलात कौम की अमानत है, लूट मार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक यकीनी बनाएगी। खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करेंगे। खवातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबीती कोर्सेज में हिस्सा लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग और लाइसेंस फराहम कर रहा है। मकसद खवातीन को सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की आमाज गाहें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात बरकरार और ज्यादा फाल हैं। तालिबान हुकूमत हर माह फितना अल खवारिज के सरबराह नूर वली महसूद को $50,500 फराहम करती है। खारजी नूर वली महसूद के कब्जे में अमरीकी अफवाज के छोड़े हुए जदीद हथियार मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस धमाका और कैंटोनमेंट हमलों में भी अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। इसराइल ने 5 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हिलाल अहमर के जरिए 45 फलस्तीनियों की लाशें भी हवाले कर दी। गजा पर बमबारी भी जारी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। हजारों फलस्तीनी अब भी इसराइल की कैद में मौजूद। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर भी हमला, 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफा, मसनूई जहाना, जौहरी तावन और तिजारती मुआहदे मुतवक्के। राइटर्स का कहना है अमेरिकी सदर सऊदी अरब पर मुआहदा इब्राहीमी शमूलियत के लिए जोर देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है सऊदिया मुआहदे में शामिल हो जाएगा। सदर ट्रंप का यह भी कहना था मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। अगर अमेरिका इसराइल की हिमायत छोड़कर खित्ते में मुदाखलत बंद कर दे तो इससे ताउन मुमकिन है। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई कहते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान अदम मुताबिकत पाई जाती है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफादात का टकराव भी है। अगर अमेरिका इलाके में अपने फौजी अड्डे खाली कर दे तो इसका जायजा लिया जा सकता है। ईरान के साथ ताउन की अमेरिकी दरख्वास्त पर मुस्तकबिल करीब नहीं बैद में गौर किया जाएगा। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन, वोटिंग का अमल शुरू हो गया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे। ज़ोहरान ममदानी का आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन क्रिट्स सिल्वा से मुकाबला। इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा आवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। सदर ट्रंप का आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की हिमायत का ऐलान। कहा न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट मेयर आया तो वफाकी फंड नहीं दूंगा। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब में मौजूद। मरकजी तकरीब कल होगी। अंदरून बैरून ममालिक से आए 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का खैर मकदम, बेहतरीन इंतजाम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कराची में जारी। पाकिस्तानी कंपनीज के दिफाई आलात नुमाइश में पेश। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन भी नुमाइश में पेश किया गया। 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल-अक़वामी और मुल्की नुमाइश को नंदगान की शिरकत। 4 रोज़ा इवेंट जुमेरात तक जारी रहेगा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, मुल्की और गैर मुल्की फनकार शरीक। मजेदार खानों के स्टॉल तवज्जो का मरकज। गैर मुल्की फनकारा पाकिस्तानी खानों के फैन हो गए।